People usually say that women are strong, beautiful, they are smart and graceful, but no one really tries to understand the mental pressure, the emotional burden that we all carry at once. And we women do really tell you guys what we feel. हम लोग बताते हैं कि हमें क्या फील होता है या हम क्या टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बट no one tries to understand what we feel and they label us something we are too much, और यार हम लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव है या ओवर इमोशनल है या ओवर ड्रामेटिक है, समथिंग लाइक दैट. औरतों को क्या चाहिए. And some people also out there, they don't even respect women in general. Hello guys, this is Siley and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and taking care of yourself as you should. And happy Women's Day to all the beautiful ladies out there, to all the women who are working and taking care of themselves, their families, their household, to the ones who are working in the fields, to the ones who are becoming a woman, and to the ones who have lived their whole life being a woman. We women carry different identities in our life: a respectful daughter, a loving wife, a responsible mother, a caring partner, peacemaker, caretaker, and somehow we are expected to do all this with just having a smile on our face. And this Women's Day, I want to have a heart to heart conversation to each and every woman watching this video right now. Let's start this conversation with something that we women or each and every girl out there have felt this way once in our life or have been feeling this way. And it is about feeling insecure about our body, about our skin, or the way we look. And it's completely okay that you feel this way. It's okay because इवन आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी ये फील होता था एंड बहुत टाइम तक मुझे इनसिक्योर फील होता था अबाउट द वे आई लुक और अबाउट माई स्किन. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस. ओके, I want you guys to know that you guys are beautiful, you're gorgeous, you're so much loving, and you know the way you smile, your eyes get sparkle, sparkle, sparkle. And you don't have to be insecure, you don't have to judge yourself and compare yourself with the ones you see it on online on social media. बिकॉज वो सब जो भी आप फोटोज़ देखते हो या वीडियोस देखते हो वो सब फिल्टर लगाए हुए हैं, वो सब क्यूरेट किया गया है, उन्होंने सबसे बेस्ट पिक किया है एंड तब जाके ही उन्होंने वो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत चेंजेस एडिट करके उन्होंने पोस्ट किया है. So don't compare yourself, your looks, your skin, your body to the pictures that are online. And it's okay, and I understand that you want to groom yourself, that you want to look your best, that you want to dress yourself best and be confident when you walk. But what is not okay is to being paranoid about how you look in general, about your skin, or about your body structure. Like when you want to groom yourself, आप लोग ये सोचते हो कि ओके, मेरे बाल कुछ ज़्यादा लंबे हो गए हैं या मुझे मुझे थोड़ा चेंज करना है मेरे हेयर स्टाइल में, सो आई वुड गेट अ हेयर कट, राइट? या फिर आई एम हैविंग एक्ने ऑन माई स्किन, सो एक्ने आ रहे यार, सो व्हाट कैन आई डू? सो आई विल सर्च इट ऑनलाइन and I will look for the best serums, or I'll just contact a dermatologist. Okay, so that is how you groom yourself, that is how you take yourself in a positive way because you value yourself. But when you get paranoid, when you get overthink a lot about each and small, which is not even a big thing, because I know for you it is a big thing, but
it is a very general thing that your body reacts whenever, for example, if you have done your waxing, you will sometimes you might get acne or bumps, and that is normal, that is completely normal. You do not have to feel paranoid about it. Or you get strawberry legs, it's completely normal because that body is reacting in that way. आप कुछ तो उस पर केमिकल्स अप्लाई कर रहे हो, उसको खींच रहे हो, तो वो वैसे ही होने वाला है. सो देयर इज नथिंग टू फील पैरानॉइड अबाउट इट. डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक इन द मिरर और ओवरथिंक दैट व्हाई इज दिस सो, क्यों ऐसा हो रहा है, स्ट्रेस अप हो जाना. हम लोग कभी इनसिक्योर थे ही नहीं हमारे बॉडी के बारे में. अगर एकदम एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट से चला जाए, हम लोग इनसिक्योर तब होने लगते हैं जब हम लोग एक तो सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें देखते हैं, किसी को देख के अपने आप को कंपेयर करना, या फिर हमें किसी ने बचपन में बोला गया रहेगा कि या जज किया रहेगा कि अगर तेरा स्किन थोड़ा लाइटर होता तो मे बी तू और प्रीटियर दिखती, या फिर तेरा नोज थोड़ा और शार्प होना चाहिए था, या फिर तो तेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए, ये एक्ने क्यों आते रहते हैं तुझे, दिस थिंग्स. सो दिस मेक्स अस फील इनसिक्योर अबाउट आवर बॉडी या अबाउट आवर स्किन. या सिंपली अगर आप पतली भी हो नॉर्मली तो भी पूछेंगे आप इतने पतली क्यों हो, या तो कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई है, या फिर आप थोड़े ज़्यादा हेल्दी हो गए रहोगे. सो पीपल विल से या यू शुड लूज वेट. So this didn't come from from our brain, खुद से वो नहीं आया है. ये इसलिए हो रहा है बिकॉज बचपन से हमें कोई ना कोई आके टोकता है, हमें जज करता है, हमें बोलता है, एंड दिस आर नॉर्मली द एल्डर ones who comes and say, and it is understandable if some things which has been overly and it is not वो बराबर नहीं है एंड तब जाके वो बोल रहे हैं, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. वी शुड रियली वर्क ऑन दैट. बट जो चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है एंड देन स्टिल बोल देना वो चीज़ को, टोकना, देन दैट मेक अस फील इनसिक्योर. हमारा नेचुरल सेल्फ है वो इनफ नहीं है, एंड there are unrealistic standards which have been put on us to look in this way. और अगर आप ऐसे ही दिखते हो, ये स्टैंडर्ड्स में अगर आप फिट होते हैं, then you are beautiful. But there is no use of just being beautiful if you don't have a kind and loving heart. हमें ना ऑनलाइन में भी समझ में आता है कि किसका स्किन सच्ची में वैसा ही है एंड किसका नहीं है. एंड इवन तो अगर आप कोई अकाउंट से आपको थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, आप बार बार उधर जाके अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो प्लीज़ पहली बात तो वो करना बंद करो. ओके, यू डू नॉट हैव टू गो एंड लुक इनटू दोज अकाउंट्स. यू डोंट हैव टू गो एंड सी देम कॉन्स्टेंटली एंड देन overthink about and compare yourself to them. Unfollow those accounts. कोई ज़रूरत नहीं है. दूसरा चीज़, if you guys are ओवरली अगर ज़्यादा ही वेट हो गया है, या फिर एक्नेस बहुत ज़्यादा आ रही है या आ रहे हो, सो फॉर दैट यू गाइस नीड टू वर्क आउट. यू गाइस नीड टू ईट हेल्दी एंड लुक योर बेस्ट सेल्फ. अगर मैं बोल दूंगी ना कि इट्स ओके आप ओवरवेट हो, तो इट्स ओके अगर एक्ने आ रहे हैं फेस में, इट्स ओके कि आप अपने आप को हाइजीनिक नहीं रख रहे हो, देन मैं आपको वो सब बोलनी नहीं वाली हूँ. ठीक है, इट इज़ नॉट ओके इफ़ यू आर ओवर ईटिंग, इफ़ यू आर कीपिंग योर सेल्फ अनहेल्दी. ओके, अगर आपके फेस में बार बार एक्नेस आ रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू चेक योर डाइट, यू नीड टू ईट क्लीन, यू नीड टू स्टे हेल्दी, you need to do workout, you need to exercise, you need to release sweat from your body so that it release toxins, जो भी toxins है वो सब रिलीज कर दे तुम्हारे बॉडी से. सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि जैसे हो आप वैसे हो, सब बेस्ट हो, नहीं. इफ समथिंग यू योर सेल्फ नो कि नहीं ये मेरे लिए अनहेल्दी है, बिकॉज अगर वेट भी ज़्यादा हुआ तो वो अनहेल्दी होता है, उससे बीमारियाँ होती है, उससे सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, चल भी नहीं पाते इजीली.
Okay, so you need to understand where you have to groom yourself and where you have to stop overthinking and being paranoid about yourself. There is no use of stressing, there is no use of overthinking, there is no use of being paranoid. You have to take actions. अगर मेरी स्किन में एक्ने है, then I have to go and talk to a dermatologist. I have to show them. अगर मैं ओवरवेट हो रही हूँ, अगर मैं अपने बेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं हूँ, देन आई विल गो एंड वर्क आउट, देन आई विल गो एंड हिट जिम. राइट नाउ आई फील लाइक आई एम नॉट इन माई प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर. सो मैं क्या करूँगी, मैं उसके बारे में बार बार सोच के स्ट्रेस नहीं करूँगी. मैं सीधे एक्शंस लूँगी भाई. मैं जाऊँगी और एक्सरसाइज करूँगी, मैं अपना हेल्दी खाऊँगी, मैं ज़्यादा वाटर इनटेक लूँगी. दिस इज़ वॉट आई एम गोना डू. इवन जब मैं छोटी थी, लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, so at that time also I used to have a lot of acne, and people and my classmates used to bully me whenever I used to go to my hometown. The elder ones आके बोलते थे, यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया है, तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, and all that things. And I was like कि यार एक्ने तो आ रहे, ठीक है, बट अभी इसके बारे में ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है. अगर मुझे मेरा बेस्ट सेल्फ दिखना है, इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रूम माई सेल्फ, देन आई हैव टू गो एंड टॉक टू डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड वही मैंने किया. मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई एंड उनका जो भी है प्रिस्क्रिप्शंस वो मैं लेती थी टाइम टू टाइम. एंड देन एक्ने मुझे आना कम हो गए, एंड इवेंचुअली एक्ने आना ही बंद हो गए. नाउ लाइक आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप. I'm literally not wearing a makeup. मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है, and this is my real skin, and this is how I look. So I'm comfortable in my own skin right now. I value myself. अगर मेरे फेस पे एक्ने होता है तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती. मैं अपना डाइट चेक करूँगी, मैं फिर देखूँगी कि मैं और क्या चीज़ें मैं अप्लाई करूँगी, क्रीम जिससे, या सीरम्स वगैरह जो मैं करती हूँ, मैं रोज़ करती हूँ. आई हैव अ स्किन केयर रूटीन. एवरी डे आई फॉलो दैट. सो आई डू दैट. सो आई डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. Rather than taking stress, I know what I have to do, so I align myself to that. You need to learn the difference between taking care of yourself to criticizing yourself. Difference है self care और self criticism में. आप जब आपका खुद का केयर करते हो तो आप अपने बॉडी को, आप अपने स्किन को वैल्यू करते हो, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. ओके, यू से कि अच्छा ओके मेरे फेस पे एक्ने आ रहा है, ओके लेट्स गो टॉक टू डर्मेटोलॉजिस्ट. अगर मुझे वेट कम करना है तो लेट्स गो एंड डू एक्सरसाइजेस एंड वर्कआउट. ठीक है. सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या होता है, आप वहाँ पे अपने आप को टोकते हो, यार मैं ऐसी ही क्यों दिखती हूँ, यार मेरा बॉडी ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों हो रहा है मेरे बॉडी पे, वाई आई एम लाइक दिस, मैं क्यों खूबसूरत नहीं हूँ, वाई आई डोंट लुक ब्यूटिफुल. दिस इज़ हाउ यू सेल्फ क्रिटिसिज्म योर सेल्फ. And this is not healthy, this is not a healthy thinking. And if you do not like understand this, you are going to simply stuck in a loop, and you are just going to decrease your self worth. जहाँ पे self love नहीं है वहाँ पे self worth नहीं होता है. You need to understand this. And जहाँ पे self worth नहीं होता है वहाँ पे confidence भी नहीं आता है. And the goal is not to look like the ones you see on social media. That is not your goal. The goal is to, you have to look your best. When you walk in a room, you have to walk with confidence, and you are someone that who doesn't question your worth. That is your goal. That should be your goal, not the goal of यार ये अच्छी दिखती है, चलो मैं इसके जैसा ही दिखने लगती हूँ. No, stop comparing that, stop thinking that. It's bullshit. It's really bullshit. Women's Day, I want each and every woman out there to understand this few things. I know सब लोग ही women to women, okay, अच्छा बात नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे के बारे में, या अच्छा नहीं बोलते, या अच्छा माइंडसेट नहीं रखते किसी के बारे में, और they have this jealousy factor. Most of the women try to pull each and another woman down, या बैक बिचिंग करना, वो सब चीज़ें. पहली बात, आप वुमेंस डे विश करो ही मत अगर आप ऐसा सोच रख के चलते हो. यू नीड टू हैव दैट लविंग एटीट्यूड टू ईच एंड एवरी वुमन आउट देयर, बिकॉज ईच एंड एवरी वुमन फील्स द वे यू ऑल्सो फील. समटाइम्स ऐसी चीज़ें वो उनको फील होती है जो आपको भी नहीं कभी फील हुआ रहेगा. सो वुमेंस डे तभी विश करो, वुमेंस डे तभी सेलिब्रेट करो अगर आप भी अपने आप को
वैसा सोच डालोगे और रखोगे कि आई शुड नॉट लेट एनी वुमन इन द रूम डाउन, क्योंकि आई हैव नोटिस गर्ल्स नॉर्मली क्या करते हैं, अगर कोई अच्छी नहीं दिख रही हो उनके एक स्टैंडर्ड से, सो दे विल बुली हर, और उसके पीठ पीछे बात करना कि यार ये तो ऐसी ही दिखती है, समथिंग लाइक दैट, एंड विच इन माई डे टू डे लाइफ आई डू नॉट इवन कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट। मैं कभी किसी को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, मैं कभी उसके लुक्स को लेके जज नहीं करती, ना ही कभी किसी के लुक्स को लेके बोलती हूँ कि यार ये ऐसा क्यों है या ये ऐसी क्यों है। आई डू नॉट, बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा इविल चीज़ लगता है वो, क्योंकि like I do not understand how women, how elder people in household try to bring people down। उसके खुद के घर में ही लोग बच्चों को किस तरह से डाउन फील कराते, मुझे समझ में ही नहीं आता है। बिकॉज नॉट जस्ट फ्रॉम माई स्टोरी बट आई हैव ऑल्सो हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि उनके घर पे भी किस तरह से उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके, या उनके फेयर को, उनके स्किन टोन को लेके, या द वे दे लुक बोला जाता है। एंड ये एल्डर्स ही है, मोस्टली वुमेन एल्डर्स ही है जो बोलते हैं, मेंस भी कभी कभी बोलते हैं, लेकिन वुमेन एल्डर्स भी बोलते हैं। देयर इज़ अ वे ऑफ एड्रेसिंग दोज थिंग्स। इफ़ यू थिंक दैट समथिंग इज ओवर देन try to make them understand in a very polite way, not in a criticizing way. Girls, women out there, please stop having this people pleasing attitude. Please start taking stand for yourself. Please start raising your concerns. Do not tolerate disrespect. Stand for yourself, because तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा, तुम्हारे लिए तुम खुद ही करोगे। अगर तुमको लगता है कोई आएगा सपोर्ट करने, नहीं, आपको ही खुद का स्टैंड लेना है। आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए बराबर नहीं है, कोई बराबर मुझे ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई मुझे अब्यूज़ कर रहा है वर्बली या मेंटली भी हैरास कर रहा है, या कुछ भी चीज़ें, यू हैव टू स्टैंड फॉर दैट। यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दैट you can't have that people pleasing attitude even in your household, even in your workplace। आपको वो people pleasing attitude रखना ही नहीं है। जो चीज़ें बराबर है आपके लिए, ओके, मुझे जहाँ गलती है, ओके, मुझे उसको सुधारना है। बट जहाँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जहाँ पे मेरे अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोली जा रही है जो सही नहीं है, या कोई मुझे अब्यूज़ कर रहा है मेंटली या वर्बली, then you have to stand for yourself। you have to go and talk to that person। अगर नहीं समझ में आ रहा है then सीधा कट ऑफ कर दो, आप बाय बाय कर दो, कोई भी हो, कहाँ पे भी हो आप। I do not have people pleasing attitude, I used to have। and there was this person where that person asked me to change something about me, and I was not comfortable with that, because it was also to change my career, which was not aligning with what I wanted to be or wanted to become। So I took stand for myself, I resisted it, and that person said कि भाई तू खुद को समझती क्या है। when you need to understand, you need to let go of that person, you need to cut off that person who tries to devalue you, who tries to make you feel worthless। You need to stop engaging with those people because they don't deserve you। अगर कोई तुमको बोलता है ना कि तू खुद को समझती क्या है, तो अगर मैं खुद को कुछ भी समझूं, तुम लोग कौन होते हो जो मुझे ओपिनियंस देने वाले, या मुझे मेरे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने वाले, या मुझे करियर में क्या करना है, या मुझे कैसे रहना है। हु यू आर? डू यू पे माई बिल्स? डू यू टेक केयर ऑफ मी? डू यू टेक केयर ऑफ द बेसिक एसेंशियल थिंग्स दैट आई नीड इन माई लाइफ? डू यू नो वॉट आई गो थ्रू, हाउ आई वर्क? नहीं, देन तुम लोग कौन होते हो मुझे ओपिनियंस देने वाले? या मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चेंज करूँ, या तुम्हारे हिसाब से मैं क्यों चलूँ? सिंपल एज दैट। स्टैंड फॉर योरसेल्फ। वो वुमन जो अपनी हीलिंग फेज में है, जैसे कि मैं भी अपनी हीलिंग फेज में हूँ, सो वी डू नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, वी डू नॉट टॉलरेट टॉक्सिक बिहेवियर, वी डू नॉट people please, we raise concerns where we should be, we set boundaries,
एंड जब भी हम लोग ये चीज़ें करते हैं तो लोग हमें हैज़ अ रूड, डिफ़िकल्ट, लाइक सेल्फिश ऐसा लेबल करने लगते हैं. एंड if you are in your healing phase, girls, women out there, if you know that certain things are not right for you and you're taking stand for that, and if तुम लोग अपने boundaries set कर रहे हो and people are not respecting it, and let them call you rude, let them call you toxic, let them call you, क्योंकि वो लोग toxic ही बुलाएंगे, let them call you difficult, let them call you whatever they want, but do not disturb your peace to people please someone else. Do not tolerate disrespect because they can. Do not engage with those people. Just try to avoid those people. Just be in your own world, do different things, contribute to different things. There are many things out there, there is more things to explore in this world, so focus on that. Don't focus on the people who are trying to make you feel worthless. तो हीलिंग वुमेंस होती है, उनका कोई सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करता है, उनको मिसअंडरस्टैंड ही करते हैं. सो लेट देम बी. You do not want to understand, I do not want to invest time making you understand. That's all your mentality should be. Like, because if people really value you, if people really want to hear your story, if people want to know why are you acting like this, or why are you setting boundaries, or why are you raising concerns, people will come and talk to you. People won't just create a misconception about you and then put it on you. So guys, I hope this video helps you out, especially to the women out there. And this Women's Day, let's celebrate us, let's support each other, let's not tolerate disrespect, let's not bring each other down, and let's be more kind to each other, because each and every woman out there are dealing and suffering from some things they don't even speak about, or they are just suppressing to themselves. So let's be kind, and let me know your thoughts in the comment section. And till then, see you guys in the next video. Love you.